this is going to be a big controversy, but harsh reality needs to be faced. Modi government, I feel, does not like MSME. Not startups, but MSMEs. Why? Sudharte nahi hai. And say for MSMEs or startups, right? What would be that only one piece of advice that you would want to give them? The best advice I can give to all entrepreneurs is अपना resignation letter लिख लो of post dated. Yes, then I want to resign from all my duties. Exactly. Not from business. Yes, I will not be a CEO. I'll be an advisor. I'll be a chairman. I'll be a board member. But मैं रामू काका नहीं बनूंगा. So what role has spirituality played in your journey and your success? बीपी की गोली खाओ, रात को नींद नहीं आए, लॉस हो गया, बीवी से झगड़ा, एम्प्लॉय से झगड़ा, धंधे में ध्यान नहीं, डिक्लाइन खत्म. तो वो स्पिरिचुअल पावर था विच हेल्प्ड अस सस्टेन. Welcome all to yet another episode of The Branding Circle. Today we have a very remarkable guest who's been in entrepreneurship for more than 2 decades. He's a very well-known business coach, a mentor, a guide to 700 plus entrepreneurs. He's been on the Forbes India list and a chairman of 39 Solutions Group. So let us all welcome today Mr. Bashesh Gala. Hello, sir. Welcome to the Branding Circle. Thank you for having me. As we dive into this conversation with you and with your experience, I would like you to put some light on your journey, how you've become the Bashesh Gala that we know today. If you can throw some light on your journey from how you started and how you reached here. Sure. So what we do is a very niche service called as business mentoring. Now there are so many terms out there: training, coaching, leadership coaching, executive coaching. So what is business mentoring? So how did I reach this journey is very interesting, but understand business mentoring is someone who is doing business, has helped a lot of companies reach 10x, 100x, and then use the experience and connection for others to go there. So coaching is just, this is how you bat, but mentoring is Mahendra Singh Dhoni, where he is the captain of, a team, CSK, and then when he coaches someone else, he is the right mentor because he has done there, been that. So journey has been very interesting, and very quickly I'd like to share a professional journey that God was always challenging. Parents were very open. They were like कि बेटा हमें कुछ आता नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है. We are entrepreneurs, Gujarati family. जो करना है कर. 2 conditions: be happy and be best. जो करना है उसमें अच्छे रहो और happy रहो. So I was a confused kid. 2001 में IT का boom था. So I studied IT, VJTI, IIT Bombay. उसके बाद लगा नहीं फाइनेंस करना चाहिए, तो shifted to finance. Worked with investment banks, did my CFA FRM. उसके बाद लगा नहीं strategy करना चाहिए, तो worked with one of the best consulting organizations in New York and London in the world. फिर इंडिया में आया तो लगा कि भाई इंडियन बिजनेसेस की ग्राउंड रियलिटी, खास करके मिड साइज स्मॉल बिजनेसेस 1 to 250 करोड़ के टर्नओवर के बीच में MSMEs, इनकी रियलिटी बहुत अलग है. एंड देन आई रियलाइज दैट द फर्स्ट 27 years of my life, God and destiny had prepped me to become a one solution center and build a company which can understand their finance, their strategy, their HR, their marketing, their IT needs. Because very rarely you will come with a person who understands numbers and marketing. And वहाँ से 39 Solutions का journey start हुआ. And initially it was a struggle, but right now, by God's grace, we are doing very, very well. Super. So, why India? So you said you worked in one of the top consulting companies of the world in London and different countries, right? Yes. Why did you come back to India? So there was a time in 2011 where I had to take a call. Either make a career in the US. I was there at Wall Street at that point of time, getting $250,000 quarterly bonus, which is a good amount of money. And then, I had a call that if you want to stay there, settle there, choose your life partner accordingly, or if you want to come back because starting a business or finding a new career takes time. So there were 3 factors which I considered. One was opportunity, which I felt opportunity is there in India and in the US, so both were equal. But second was a spiritual angle, little spirituality, dharma, atma, meditation, family bonding. And third is parents. I'm my parents' only son. It's very difficult for parents to come in the US, settle down there, leave their lifestyle, their relatives.
So I decided to make a move back and do not regret it. I'm grateful for my time in the US, in London, in Tokyo. I think that has made me a very, very strong, experienced, powerful leader, opened my mindset. But I think India is the place to be. And I think it was a best decision of my life. Super. I think this last line everyone should remember, that India is the place to be, right? Especially when the NDA is forming its government the third time in India, right? What do you think is the opportunity in India for the entrepreneurs or someone who's starting new? Let's be brutally honest. NDA, Modi ji aaya, good. Had Modi ji not come, India's future would still be bright. Purely for two reasons. Population of 140 crores, where majority are young today. Second, aspirational. Elvish Yadav को देखते हैं, मुनावर फारूकी को देखते हैं. They want to spend. Credit का culture बढ़ रहा है. So the buying power of hungry Indians is here to stay. So businesses are going to come here. Now, whichever government comes and forms, now Modi 3.0 is coming, 9 June को swearing in होगा. As long as they are minimum interference government and they create a lot of opportunities, interest subsidies for SMEs, foreign players are invited to set up manufacturing units, iPhone exports have started. As long as this policies continues, India is going to grow. In fact, I think India will be a power to reckon because 140 crores here plus the kind of opportunities if government gives, we can be a net exporter also. So do you want to, sir, touch upon what are the different subsidies that a startup can, benefit from? Because you've been dealing with a lot of startups, right? 700 is a huge number. So for someone who's starting very new, what are some very basic subsidies that they can, benefit from to take their business from 0 to 1 at least? Right. So Ankit, just to give experience, in a better light, 700 companies have been mentored over the last 12 years. But we have done 1 day, 2 day, 3 days training with more than 50,000 entrepreneurs. Wow. Online, 50,000 offline. entrepreneurs. Yes. So why I'm sharing that is, there are 3 or 4 things the startups must know. Point number 1 is the Startup India registration. It's a no-brainer. It's extremely easy. It gives you a benefit, from DPIT, so Department of Policy, and once you get that certificate, it enrolls certain benefits. And if you qualify for some benefits in a period of 10 years, for 3 years, there's no income tax applicable, which I think is a startup would anticipate that first 4-5 years, they will scale, struggle. But 7th, 8th, 9th year, when they make handsome profits, no income tax is a good subsidy, indirectly benefit. More importantly is, taxation in India is still complicated. So investors do not get angel tax if you have a Startup India certificate. So that's a big benefit. So that, hey, I'm a small business. I structured well. Ankit, you invest in my business and next year you get an income tax notice. Boss, you have invested in this business. Value is increasing even though you're not exiting. Please pay angel tax. If I have a Startup India certificate and you get it, no angel tax. But let's talk about realistically for small people. I think there is not a lot of benefit from the government per se. They are trying to provide. There is Mudra loan, Pradhan Mantri Help Loan, which gives you a loan of 10 lakhs, 5 lakhs, which is okay. If you are networking and in a bigger circle, that is where you unleash a lot of benefits. So let me give you one insight. There is a lot of benefit for food manufacturers. But I don't know a lot of food manufacturers who are getting special economic zone status. But Patanjali, almost all their manufacturing units are in a SEZ, where government pays 50% of their capital cost. So machinery लगाए 1000 crore का, 500 crores is government subsidy. Second, they don't have to pay tax for 10 years. So whatever profit you make, no tax. Third, you take a loan. That loan is also subsidized by the government. So understand, 50% your equipment is free, no income tax, you get a cheaper loan, and then you compete and you kill the smaller brands. Oh. So this is reality throughout the world. So why do you think the government is supporting just one brand or someone, making them someone very strong and not supporting everyone or every entrepreneur who is starting up? So this is going to be a big controversy, but harsh reality needs to be faced. Modi government, I feel, does not like MSME. Not startups, but MSMEs. Why? सुधरते नहीं है. Do not come in systems. अभी भी कैश छोड़ना नहीं है, टैक्स भरना नहीं है, compliances में आना नहीं है. I believe they think it's easier to deal with
20, 30 companies who are compliant, who will make good money, contribute well for the society, scale, and system sudharenge. Which will also make India big in a way. What is happening is India, unfortunately, is becoming a monopoly and duopoly industry. Let's look at all industries. पहले mobile carriers कितने सारे थे. Innovation came, cheaper pricing came. Cheaper pricing was there for only 2-3 years. Now prices are again expensive. Only Jio, Airtel, Vodafone India, which is bad. If you look at any other industry, if you look, where Ambani, Adani's, duopoly, monopoly, or very selected players are coming, this is bad for the economy. So here what I think is incubation centers, and government is helping. A lot of incubation centers, a lot of mentoring opportunities are there, where a lot of small players are getting funds, are getting expertise, are getting connections. And business में the most important thing that matters is your network. आप जिसको जानते हो, जो आपका फ़ोन उठाए, जो आपको गाइडेंस दे, जो दरवाज़ा खोले, वो आपका सबसे बड़ा सक्सेस का मंत्र है. True. So you mentioned very right thing, right? कि business में आपका network बहुत important है. Your network, we've heard your network is your net worth. Yes. Right? Do you want to touch upon any networks that a startup can be part of which can benefit them in their initial days, or you've experienced some? Sure, there are many networks. So every mentor whom you are in touch with will have their own network of alumni. Every prestigious institution will have their own network. IITs, IIMs, ISBs, Harvard are known for the alumni networks. They're the craze. There are a lot of angel funds and angel networks around there, where once a month or thrice a month or once a quarter meetings are there, and you meet a lot of people. And social media today is a crazy place for raising funds and networking. 95% wonderful. people will just do Instagram scrolling, That's time it. pass. Entertainment. Correct. But there are so many LinkedIn groups where you can be a knowledge partner, knowledge creator. There are meetup groups there where you go, you network. And I think that is the best place. So I always suggest find 2 or 3 mentors, be a part of their network. So for example, for you to gain access into, let's say, DMart, or for you to get privileged insights into Amazon is going to be tough. But we have cracked it. We have worked with them. They have respect. So if you're part of our network or people like us, gaining entry there is just a phone call away. So if you have my trust, you have my respect, I know you're a credible guy, opening doors is easy for us. So such networks, such incubation groups, such power people, if you are part of that, life becomes very, very easy. Absolutely. So mentors definitely not just guides you, but also opens up a lot of doors for you, right? So now understanding, if you are mentoring 700 plus businesses and touched lives of, I think you said 50,000 plus, Sure. right? Who is your mentor? Yeah, very good question. So I follow 3 people a lot. Okay. One is Ashok Shah, chairman of VTrans. VTrans. Yeah, It's a VTrans. logistics company? It's a transportation logistics yeah. company. Clocked 1625 crores, 1625 crores, employing directly, indirectly more than 22,000 people. He is the chairman emeritus of VTrans. And he discovered me in 2014 and said that what you're doing, have bigger aspirations. You can reach 100 crores. So this is what happens with entrepreneurs. There's no one to challenge you. There's no one to show you the mirror. And when someone who's been there, done that, credible, sees potential in you and challenges you. So we have a very healthy relationship. Second person whom I'm extremely closest is someone called as Milind Agarwal. He was the CTO of Gupshup, India's first SMS company. SMS Yes. marketing company. Yes. Yeah. He runs his own company today, which is funded by a Japanese company. And his PhD, very interesting, is running business through principles of Bhagavad Gita. That's his PhD. So he comes once a quarter, sees my numbers, randomly calls few clients, audits me and challenges me. Because no one can challenge me. My clients can't challenge me. They call me sir. That guru, shishya, parampara. But ye to mere sir hai. So he comes and challenge me कि Basesh, here value creation is less. You can do more. Invest in AI, invest in technology. So that is extremely important. And third, we have created a high performance circle group. Out of my mentees, there are some people who have launched their IPOs, who have crossed the 1,000 crore club. So that group is my third mentor, where they also challenge me saying that, sir, हम 1,000 करोड़ पे पहुंच गए, हमने IPO निकाला, आप अपना IPO कब निकाल रहे हो? आप franchises कब launch कर रहे हो? So just as a background, I run multiple businesses. So they also push. So when you have been there, done that, you have an authority to push. And that is what is the power of circle and a mentor. That people whom you spend time with, if they are positive, productive, highly passionate people, you will become profitable.
एंड इफ यू हैव अ राइट मेंटोर हुज विजन इज अलाइंड एंड हु वॉक्स द टॉक, खुद के पास कुछ प्रोवन सक्सेस है, ऐसे ही नहीं, यू नो, इट्स टुडे वेरी इजी. Everyone wants to be a mentor. तो इट्स वेरी इजी टू बी ए मेंटोर. यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, मेंटर बन गए. LinkedIn पे अपने प्रोफाइल में ऐड कर लो, आई एम अ मेंटर. मेंटर. एंड द इजीएस्ट थिंग इज, यू नो, मोस्ट पीपल हु कैन स्पीक गुड किताब पढ़ेंगे, यूएस का किताब, फॉरेन ऑथर्स, एंड देन दे विल स्टार्ट. और मोस्ट पीपल विल डू एन NLP ट्रेनिंग कोर्स और उसको फिर माइंडसेट मास्टरी कर देंगे, विच डज नॉट वर्क इन इंडिया. भाई इंडिया में बिजनेस करना कठिन है. यूएस के कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चलेंगे. रास्ता पे जो डोसा बनाता है वो 1 करोड़ कमाता है, और जो बेचारा दुकान लेके टैक्स लेके ब्रांडिंग करता है वो बेचारा 10 लाख भी प्रॉफिट नहीं कमाता. तो इंडिया इज अ डिफरेंट एनिमल वेयर इंडियन प्रिंसिपल्स, इंडियन रिलेशनशिप चलता है, जुगाड़, ये सब आपको बिल्ड करना पड़ेगा. एंड वी हैव सीन राइट कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैव कम टू इंडिया, दे हैव इनोवेटेड फॉर इंडिया. Like the example is Amazon nowhere has an option of cash on delivery. Yes. But they started in India because Flipkart innovated for India कि India में cash on delivery चलेगा, India में online payments अभी तक no one trusts much. Right. And they had to innovate it and they had to change themselves, right? Absolutely. There's one very famous quote which I love. Yeah. Uber के chairman ने बोला, a lot of CTOs also say this, Yeah. India is the most brutal market. Yeah. I think that video came in last year or sometime. Yes. Yeah. Indians want everything and they Yeah. don't want to pay They for don't it. want to pay for it. And it's a brutal. If you can crack this market, तुम दुनिया के कोई भी कोई भी market मार्केट में क्रैक कर सकते हो. But people take it very negatively. Yes. But India is again very tough. So for mentoring, you have to prove yourself कि भाई आपने क्या उखाड़ा है. And once you prove yourself, then when you guide people, you see. And like I said, it's just 2 things. One is wisdom, because it's very easy for me. 5 minutes I can tell. You know, it takes me 5 minutes to audit a business. If you have your numbers ready, you have your team ready, within 5 minutes, जैसे आप कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हो, वो 5 मिनट में चेक करके बॉडी लैंग्वेज देख के कोई बोल देगा कि तुम ये और चेक कर लो. Within 5 minutes, we audit a business. That's a level that we have reached by God's grace. And second is the connections. So it's the wisdom, the experience and the connections. ये पूरा गेम इसका है और कुछ नहीं. So now if I'm talking about, say, if someone wants to start a new business or who's stuck in his business, how can he or she find a mentor and where can they find a mentor? Most important thing first is understand why a mentor is needed. Okay. Accept. क्योंकि ढूंढने से भगवान भी मिलता है. बट एक बहुत फेमस कोट है हिंदी में कि भगवान और झूठ सेम है. गॉड एंड लाइज आर द सेम. Okay. इफ यू आप मानोगे तो दिखेगा. इफ यू एक्सेप्ट यू विल बी एबल टू सी. आप नहीं मानोगे नहीं दिखेगा. सो इफ यू मेड अ मिस्टेक, यू एक्सेप्ट, यू विल बी एबल टू सी द मिस्टेक. Right. इफ यू बिलीव इन गॉड, यू विल सी देयर इज अ गॉड, यू विल सी हिज प्रूफ. इफ यू डोंट बिलीव, मिस्टेक भी नहीं दिखेगा, भगवान भी नहीं दिखेगा. Same way is realize the power of a mentor. I'll tell you why. Biggest reason is there's no one to challenge us. Absolutely. In business, right? Yes, and most Indians है ना, कल एग्जाम है तो आज पूछेंगे भाई सिलेबस क्या है, बुक्स किधर है. We need someone to challenge us. So in our life there's no one to challenge us, no one to audit us, no one to give us our connections. And then how do you find a mentor? Is just look, talk to people, attend their small courses, be in touch with them. There are a lot of unpaid, unprofessional mentors also who are there just to help. The biggest mistake we do is... Mentors without tags. Yes, mentors without tags. The biggest mistake we do is, we'll email them, sir, I need a job, sir, I need funding, sir, I need help. वो block कर देंगे. But if you say that, this is the problem I'm solving, this is the value I am creating, and this is the specific expertise I need, 99% people will respond. So I think LinkedIn is a great platform. Networking events is a great platform. Small meeting places, or one-day courses are a good platform to know that what people are doing, teaching, experiences. And then if your vision and values align, कि ये जो बोल रहा है इसका वैल्यू सिस्टम दिखता है, इसका कनेक्शन काम का है, एंड हिज विजन, हिज वैल्यू सिस्टम अलाइंस विथ माय विजन वैल्यू सिस्टम, यू कैन ट्राई देम. बट नेवर ब्लाइंडली फॉलो मेंटोर. प्लीज ऑडिट देम, यूज योर ओन ब्रेन्स, बिकॉज पांडव्स हैड अ मेंटोर. That mentor was nice. How should you audit a mentor? Because very simple. See, because I don't have a mentor, how would I know? How should I audit he or she? Yes, it's extremely easy. Okay, I'll complete this example. Pandavas had a mentor, Shri Krishna Bhagwan. Kauravas had a mentor, Shakuni Mama. Kauravas of bigger in number, bigger army, wrong mentor, war पे गए, self destruction. So how do you audit a mentor? Is very simple. First, खुद ने कुछ उखाड़ा है क्या? मेंटर ने. मेंटर ने. Okay. इट्स एक्सट्रीमली इजी टू बी बोल बच्चन.
जैसे एक आदमी था जो अभी कंट्रोवर्सी में आ गया है, लॉट ऑफ केसेस आर देयर, नेटवर्क मार्केटिंग, सो आई डोंट वांट टू he's नेम pitching on sales and Yes. stuff. Yeah. And then he claims that I have created 400 crorepati's, 400 billionaires. 10 का नाम दे भाई, 10 का नाम दो. So first is, have you done something yourself? Only then you can be a mentor, or you can always be a good trainer. There's nothing harm in being a trainer. Point number 2 is extremely important, is what they are preaching to others, are they implementing 70-80%? That is the most important. Walking the talk is most important. And third, always have a minimum 6 months demo with them. A person can be fake for 1 day, 3 days, but 6 months a person cannot be fake. Their mindset, their attitude, their communication, क्या उसके पास एक्चुअली वो नेटवर्क है नहीं है, कितने लोग अच्छे हैं. सो वंस यू हैव अ डेमो, कीप चैलेंजिंग, ऑलवेज सरेंडर टू द प्रोसेस, नेवर टू द पर्सन. Wow, this Surrender is to an the amazing process. tip. Surrender to the process. नेवर टू द पर्सन. सो इफ दे से गोल्स बनाओ, नॉट कि सर आप मेरे भगवान हो गए. भाई ये ब्लाइंड भक्ति पॉलिटिक्स में भी गंदा है, बिजनेस में भी गंदा है. ब्लाइंड भक्त मत बनो. यस. Super. So I think, sir, you've put a lot of emphasis on spirituality. I think spirituality is what brought you back to India from your lavish lifestyle in different countries. You use a lot of examples. I've seen a lot of videos of yours where you speak about spirituality and give a lot of examples, right? So what role has spirituality played in your journey and your success? Sure. Let's understand this, and this is by far the easiest way I can make anyone understand importance of spirituality. What is success? Is it money? No. अगर जिनको लगता है कि पैसा आ गया हम सक्सेसफुल है, फिल्म स्टार्स को देखो, उनकी लाइफ में दे डोंट हैव गुड इमोशंस, नो रिलेशनशिप. राजेश खन्ना एक टाइम पे एकदम टॉप पे थे, एंडिंग में पैसा चला गया, ही हैड टू डाई अलोन विद डिजीज. यू गो टू मलाबार हिल, 5 BHK डुप्ले, एंड द पर्सन इज स्टेइंग अलोन. बच्चे बात नहीं करते, खाना से ज़्यादा गोलियां खाते. तो सक्सेस क्या है? सक्सेस इज 4 पैरामीटर्स वर्किंग इन सिंक. 4 पैरामीटर्स रहेगा तो आप सक्सेसफुल है और आप वेल्दी है. फर्स्ट इज फिजिकल सक्सेस, और एक कोविड ने सिखा दिया भाई, तेरे बैंक में 100 करोड़ है बट तुम्हारा बॉडी का इम्यूनिटी नहीं है, कोई मतलब नहीं है. नेटवर्क नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है. भाई फिजिकल हेल्थ तो चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा फिट बॉडी. सेकेंड इज व्हाट वी से इंटेलेक्चुअल सक्सेस. भाई बेसिक कॉमन सेंस. और वो इंटेलेक्चुअल सक्सेस में और एक सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो आज 95% इंडियंस में मिसिंग है, विच इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल लिटरेसी. इट इज़ पार्ट ऑफ योर इंटेलेक्चुअल सक्सेस कि भाई बेसिक बजट बनाओ, कहाँ इन्वेस्ट करना है, स्कैम्स में, चिट फंड्स में, ओवरनाइट पैसे डबल लक्ष्मी स्कीम से दूर रहो. थर्ड सक्सेस इज़ इमोशनल सक्सेस. भाई अच्छी फैमिली मिल गई, माँ बाप का प्यार है, अच्छे दोस्त मिल गए, वो भी बहुत बड़ा सक्सेस है. कम पैसा रहेगा चलेगा, लविंग फैमिली है, लविंग बच्चे हैं, दैट्स एन एन्जॉयबल सक्सेस. एंड फोर्थ इज़ व्हेन यू लव योर ओन सेल्फ, व्हेन यू कम विद अ हायर पर्पस कि भाई मेरा काम यहाँ पे एक डोंकी जैसा नहीं है. दैट आई कम हियर 70 years आई स्ट्रगल. घर ले लो EMI पे, EMI चुकाओ, बच्चे को हम पढ़ाओ, फिर बच्चे हमसे प्यार नहीं करे, बीवी हमसे प्यार नहीं करे, कर्जा लेके हार्ट अटैक में मर जाओ, वो लाइफ नहीं है. इस यू एन्जॉय, देयर इज़ एन एनर्जी. नेचर, यूनिवर्स, परमात्मा, जो बोलो, वो एनर्जी के साथ आप एन्जॉय करो. दैट वो मस्ती. तो जो इंसान के पास चारों चीज़ है, फिजिकल फिटनेस है, इंटेलेक्चुअल बेसिक कॉमन सेंस लिटरेसी है, इमोशनल वेलबींग, गुड फ्रेंड्स फैमिली है, स्पिरिचुअलिटी है कि लाइफ में बुरा होता है तो कर्म है, विल ओवरकम, माइंडसेट कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी. ये चारों रहेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो. एंड देयरफॉर स्पिरिचुअलिटी इज सो इम्पॉर्टेंट because it allows you to bounce back, it allows you to rise, it allows you to trust to a higher purpose. Like भगवद गीता का मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट है, कितना पावरफुल कोट है भाई, तू कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर, आएगा. सेकेंड, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा ना कभी मिला है ना मिलेगा, डोंट वरी, तेरे नसीब से कोई लेके नहीं जाएगा. अब इमेजिन करो, आई हैव इन्वेस्टेड इन सर्टन कंपनीज वेयर दे हैव लिटरली चीटेड अस, मिस्टेक्स हैपन, हम 2 दिन अपसेट होते, थर्ड डे हम छोड़ देते, भाई ठीक है हमारा नसीब का पैसा नहीं लेके जाएगा, उसका है लेके जाएगा. एंड वी क्रिएट वैल्यू, और 1 साल 2 साल में वो लॉस है उसका 10x रिकवर कर लेते. दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू स्पिरिचुअल. नहीं तो BP की गोली खाओ, रात को नींद नहीं आए, लॉस हो गया, बीवी से झगड़ा, एम्प्लॉय से झगड़ा, धंधे में ध्यान नहीं, डिक्लाइन, खत्म.
तो वो स्पिरिचुअल पावर था विच हेल्प्ड अस सस्टेन. You mentioned one of them was intellectual success. आज सबको लगता है कि यार मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो शाना हूँ, मुझे तो सब पता है, मैं तो ये धंधा क्रैक कर ही लूँगा. बट उसके अंदर यू मेंशन फाइनेंशियल लिटरेसी, एंड आई थिंक is it that the most important component that is missing in today's entrepreneurs, because of which we see a lot of failures? ठीक है, मैं एक कोट आपको बोलता हूँ. पीपल हु बिलीव दे हैव द हाइएस्ट IQ विल बी बिगेस्ट फेलियर्स इन लाइफ, बिकॉज हाई IQ आर पुअर टीम प्लेयर्स. तो IQ के साथ EQ भी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी भी चाहिए. फर्स्ट. सेकेंड, इंटेलिजेंस हैज़ ज़ीरो वैल्यू. कॉमन सेंस चाहिए, फंडामेंटल्स बेसिक्स चाहिए, और उसके साथ लाइक आई सेड देयर आर 3 थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज नो. वन इज़ मनी मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया. वन इज़ पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, यू नीड टू हैव पीपल मैनेजमेंट स्किल्स. एंड थर्ड इज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ग्राउंड पल्स, यानी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर की साइकोलॉजी, बिहेवियर, सेगमेंटेशन क्या चल रहा है. अब की बार 400 पार, बट ग्राउंड पल्स और कुछ था तो हिल गया. तो दैट इज़ वाई एनी एंटरप्रेन्योर हुम आई से शुड हैव दिस IQ. ये 3 चीज़ सीख लो भाई. पैसे का मैनेजमेंट, कि मनी कहाँ से आएगा, कैश फ्लो, लिक्विडिटी, लोन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बहुत सिंपल है. उसके बाद पीपल मैनेजमेंट, लोगों को कैसे इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, कैसे लीड करना, एम्पैथी से कैसे जुड़े रहना, कम्युनिटी कैसे बनाना. और मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में घूमो, क्या नया चलेगा, क्या नहीं चलेगा, चाइना में मंदी आएगा नहीं आएगा, यूरोप में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या होगा. जो आदमी के पास कंज्यूमर मार्केट ट्रेंड्स आ गया, कैश फ्लो का नॉलेज आ गया, टीम स्किल्स आ गया, ही विल क्रैक द बिजनेस. And these all the skills that you're saying are coachable, right? 100% कोचेबल. ऐसे नहीं है कि मुझे ये बचपन से सीख के आना चाहिए, मैं पैदा हूँ तब से मुझे स्किल्स आने चाहिए, ऐसे तो नहीं है. Some people are natural. Some people are natural team players. Some people are natural smart. But you can definitely learn this. और हर चीज़ के लिए बहुत सिंपल है. आपको चप्पल घिसना पड़ेगा. ऑफिस में बैठ के, कैश काउंटर पे बैठ के, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न ऑल द स्किल्स. यू हैव टू गो आउट, meet people, spend time with people, roam around, go to China Canton Fair, attend exhibitions, attend events, then you'll learn all these events. Understanding the ground pulse. Absolutely. I think इसका सबसे बड़ा example that the world has noticed is कि COVID, right? हम इंडिया में बैठे हैं, I think January से COVID was there, कभी COVID ऐसा कोई बीमारी आ रहा है, और यहाँ पे हम क्या सोच रहे थे कि यार वो तो चाइना में, हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है. Exactly. एंड सबने देख लिया क्या फ़र्क पड़ा. Yes. Yes. Wonderful. While talking about, sir, EQ, IQ, you also mentioned about building communities. So, and you have built a community of, I think, more than 50,000 entrepreneurs. Right. So, how if I want to build a community, what are some steps, if you can guide the listeners, right? What are some steps in which they can build a community successfully? Okay. Or is it what a standard process है, या you learn on the way? What is it? There are certain steps. Then of course you have to tweak along, क्योंकि कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, 2 मिनट मैगी नूडल्स नहीं है. बट पहला स्टेप है, अगर आपको कम्युनिटी बनाना है तो फर्स्ट पर्सनल ब्रांडिंग एंड वैल्यू क्रिएटर, उस पर काम करो. बिकॉज कम्युनिटी विल बी मेड ओनली इफ पीपल कम टू यू. तो उसके लिए या तो ब्रांडिंग या पर्सनल ब्रांडिंग कर लो और वैल्यू क्रिएट कर दो. आई गिव यू 2 एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स. नरेंद्र मोदी जी का भी एक कम्युनिटी है, एंड रियलिटी है कि टुडे इट इज़ नॉट BJP कम्युनिटी, इट इज़ स्टिल मोदीज कम्युनिटी. और है उसमें इंटेलेक्चुअल्स भी है, ब्लाइंड भक्ट्स भी है, देर आर सपोर्टर्स एंड क्रिटिक्स, बट है बहुत बड़ा कम्युनिटी है, राइट. सेकेंड इज Amazon.com, उसकी भी कम्युनिटी है. वहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हुआ, लेकिन वैल्यू क्रिएशन फैंटास्टिक हुआ. सो पीपल आर देयर, चीज़ लेने के बाद टाइम वेस्ट कर रहे हैं रिव्यू डालने में, रेटिंग डालने में. कोरा पे देखो, विकीपीडिया पे देखो. सो फर्स्ट थिंग इज या पर्सनल ब्रांडिंग करो, वैल्यू क्रिएट करो, या सेकेंड थिंग है इमोशनल अटैचमेंट या पर्पस डाल दो. जैसे विकीपीडिया में एविडेंट है कि देयर आर पीपल आउट देयर नॉट मेकिंग मनी, बट हाँ मुझे कंटेंट देना है, मुझे रिसर्च करना है, मुझे मेरे ओपिनियंस देने हैं. आज देखो जितने पॉलिटिशियंस लड़ते नहीं रहेंगे, उससे ज़्यादा हमारे घर में लड़ाई होती है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाई होती है. क्यों? इमोशनल कनेक्ट है. सो एनी कॉज, बिजनेस बोलो आप बिजनेस में आप बोलोगे कि नहीं अंकित को या बसेश को करोड़पति बनाना है, नहीं, बट आप एक कॉज डाल दो कि वी विल अर्न प्रॉफिट्स एंड वांट टू बिल्ड अ हॉस्पिटल, कम्युनिटी बनना चालू. इमोशनल कॉज है. आफ्टर डूइंग दैट, थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई थिंक मोदी जी स्ट्रगलिंग अ लिटिल, और मे बी हमें एविडेंट नहीं है, इज हैंडिंग डाउन द पावर. राइट. बसेश गाला ही कम्युनिटी रन करेगा तो सीमित रहेगा. बसेश गाला से के बाद 10 एडमिन और होने चाहिए,
वो फेस बनने चाहिए, वो 100 को बनाए, वो 1000 को बनाए. Decentralize the power, decentralize the comments, decentralize the community, so it will sustain. But we all have heard, if we talk about Narendra Modi, we all have heard that he's just running it. Amit bhai, जो बोलते हैं मोटा भाई, he's the kingmaker and he takes or makes the decisions and runs the show from the behind. How true is that? सही है गलत है मालूम नहीं, बट आई मेट देम, आई नो. हमारा मीटिंग है, आई डीपली एडमायर. मैं उनका सपोर्टर भी हूँ और क्रिटिक भी हूँ. बहुत कम लोग मिलेंगे और मैं खुला बोलता हूँ, आई सपोर्ट नरेंद्र सर एंड आई क्रिटिसाइज सर्टन थिंग्स, क्योंकि कोई भी आदमी इंसान नहीं है. मैं आपको चॉइस देता हूँ अंकित, एंड सब व्यूअर्स को भी चॉइस देता हूँ. 10 साल के लिए बेस्ट बनना है या 100 साल के लिए एक कंपनी, एक पार्टी, एक आइडियोलॉजी को खड़ा करना है. चूज, आपको आंसर मिल जाएगा. व्हेन यू डू नॉट डिसेंट्रलाइज पावर, हर एक आदमी का टाइम लिमिटेड होता है. समय, भाग्य, नसीब, ट्रेंड्स, कुछ भी बोलो, बड़े से बड़े राजा का भी समय अंत होता है. सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन टीम, सिस्टम्स एंड कम्युनिटी. यू हैव टू इन्वेस्ट. 10 साल में जो मोदी ब्रांड का क्रेज था, थोड़ा डेंट हुआ है, हार्श रियलिटी. Absolutely. And ये रिजल्ट्स में it is evident. और एक चीज बोलता हूँ, यू कैन नॉट फाइट 500+ सीट्स ऑन वन मैन्स फोटो. लोकल कैंडिडेट कौन है, क्रिमिनल केस कितना है, दूसरे पार्टी से बुला के वॉशिंग पाउडर निरमा करके इधर लगा दिया. पीपल एक बार 2 बार करेंगे, देन पीपल विल ओपन देयर आइज. सो सेम एग्जांपल आई विल गिव हियर इज इन कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज. इफ यू वांटेड टू गो फॉर लॉन्ग, बहुत सारे कम्युनिटीज है तो लंबे चलते हैं. लाइक लुक एट रेड क्रॉस. Yeah. इमोशनल पर्पस है. Correct. कि हमें We don't have one personal brand to it. No personal brand. You can also have personal brand. Look at अमिताभ बच्चन फैन क्लब. शायद अमिताभ बच्चन खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया, still the fan club will stay. Let me give you one more example. सचिन तेंदुलकर फैन क्लब. He is not playing, not active. फिर भी आपके और हमारे दिल में वो 10 नंबर की जर्सी का वैल्यू है. अभी भी है. बिकॉज दे हैव अलाउड पीपल कि नहीं आप करो, आप जर्सी पहनो, आप कमेंट्स करो, ये करो. एंड सचिन से एक बहुत बड़ा लेसन है हर एंटरप्रेन्योर्स को. युवराज सिंह शायद कैलिबर में सचिन से शायद बेटर था. विनोद कांबली डेफिनेटली बेटर था. डेफिनेटली. व्हाई सचिन वन इज 2 things. वन इज इंटेग्रिटी, बहुत शांत, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल. सेकेंड, ही डिड हिज वर्क डिड द टॉकिंग. मैं मेरा काम करूंगा, मेरा काम बातें करेंगे, मुझे कोई बात नहीं करनी है. सो लॉन्ग टर्म सक्सेस, ये बहुत सुंदर एक गुड टू ग्रेट बुक में भी डाला हुआ है. लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म ब्रांड्स only are created by people who are silent. ओवर मार्केटिंग, ओवर PR 10 साल का शेल्फ लाइफ है, फिर कभी ना कभी वो शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगा. ये लॉन्ग टर्म ब्रांड्स एंड लॉन्ग टर्म कंपनीज आर ओनली क्रिएटेड थ्रू वर्क, नॉट थ्रू ओवर मार्केटिंग एंड PR. Perfect. This is by This Jim is one Collins. of the best lessons till now. So sir, you've emphasized on the importance of community and how you can build, and you have also built a community, and I know that you also invest. Yes. These investments are maybe sometimes they are part of your community or outside as well. Yes, outside also. But I'll tell you, power of community. Sorry Ankit, I'm interrupting. Yeah, absolutely. But beautiful example. Community who trust each other. They've seen me for 7 years. They've seen the key members in community for 7 years. कैसा होता है, पीपल ऑफ अ सर्टन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट ईच अदर. हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर है, गलतियाँ होनी भी चाहिए, इंटेंट अच्छा होना चाहिए. इंटेंट में गलतियाँ नहीं चलता, एथिक्स में नहीं चलेगा. व्हेन यू वांट टू क्रिएट वैल्यू फॉर अदर्स, क्रिएट विन विन फॉर अदर्स, एंड देन फेम एंड प्रॉफिट फॉर योरसेल्फ, यू अट्रैक्ट सर्टन पीपल. अब इमेजिन करो ये कम्युनिटी में, इमेजिन करो मैं छोटा नंबर बोल रहा हूँ कि 50 जन के साथ मेरा वीकली बात होता है. उसे मैं कहता हूँ मेरा पावर सर्कल. ऑल ऑफ देम हैव नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़ रुपए. एक कॉल पे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे. अब इमेजिन करो ये 50 जन से मैं 5 लाख खाली बोल दूँ कि ये एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. 1 साल मेरे से मेंटोरिंग किया है, एथिक्स और आइडिया अच्छा है, एग्जीक्यूशन में 19-20 हो सकता है. बसेश गाला खुद अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी से 25 लाख डाल रहा है. आपको जितना डालना है आप डालो. मिनिमम 1 लाख है, मैक्सिमम 10 लाख. 10 लाख के ऊपर मैं डालने नहीं दूंगा, मैं ही उनको डिरिस्क करूंगा. 5 लाख 10 लाख खड़ा हो गया, 5 करोड़ का फंड एक दिन में खड़ा हो जाता है. पावर ऑफ अ कम्युनिटी. सम इन्वेस्टमेंट्स हैव फेल्ड, बट इंटेग्रिटी, द ड्यू डिलिजेंस वाज ऑलवेज राइट, एंड ऑन अ होल वी आर मेकिंग 40-45% IRR. क्या बुरा है? सो दिस इज पावर ऑफ अ कम्युनिटी. सो वी इन्वेस्ट इन पीपल only after we spend 1 year with them.
क्योंकि After they have been your community member or your student, or Yes. they have taken mentoring from Yes. you, right? only for one reason कि I want to see whether they walk the talk. That trust needs to be built with them. क्योंकि गेम एग्जीक्यूशन का अंकित आइडियाज तो यहाँ बैठे बैठे 10 आहा आइडियाज यूनिकॉर्न आइडियाज दे दूंगा. एग्जीक्यूशन का गेम है बॉस. एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी, एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ जो इंसान अपने टीम को, वेंडर को, कस्टमर्स को फेयर डील नहीं करता, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस नहीं होगा भाई. सो अगेन दैट स्पिरिचुअल एंगल. भले 10% कम रिटर्न कमाएंगे, लेकिन प्यार की नींद चाहिए, दुआओं वाली लाइफ चाहिए, किसकी बद्दुआ लाइफ में नहीं चाहिए. वी आर वेरी क्लियर. But we are seeing quite a lot opposite nowadays with a lot of corporates, startups जो funded थे. बट दैट्स वॉट हेल्प्स अस एंड एनी वन एल्स. आज के ज़माने में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आपका व्यवहार, आपका इंटीग्रिटी होगा. लेट मी गिव यू 2 एग्जाम्पल्स. मेरे पास एक यंग लड़का है 24 साल का. सर बिजनेस करना है, फंडिंग कहाँ से लूँ? मैंने बोला अब तक 24 साल है, आज के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर एग्जाम्पल 72 ईयर्स है. भाई तू 1/3 लाइफ तो जी चुका है. डू योर फ्रेंड्स लव यू? डू योर रिलेटिव्स लाइक यू? डू योर टीचर्स लाइक यू? जहाँ से उनसे 1 लाख रुपया फंडिंग लेके आ, मैं 10 लाख दूंगा. बट इफ योर टीचर्स आर नॉट विलिंग टू गिव यू इवन 10,000, योर फ्रेंड्स आर नॉट विलिंग टू गिव यू इवन 10,000, भाई तेरा व्यवहार ही नहीं है अच्छा, तेरे में स्पार्क ही नहीं है, तेरी इंटीग्रिटी नहीं है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिसका व्यवहार अच्छा है, लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं. एंड सेकेंड इज द ट्रस्ट. रिलायंस कितना भी पैसा कमा ले, दिल में टाटा के ही जगह रहेगा. भाई बिकॉज ऑफ द वे मैक्सिमम प्रॉफिट टाटा ट्रस्ट में जाएगा. आप इमेजिन करो, बेस्ट केस स्टडी आई टीच टू ऑल माई मेंटीज. यू नो अंकित, मैं दुनिया में ट्रेन नहीं कर सकता कि तुम्हारे यहाँ पे ऑफिस में आग लगा तो एम्प्लॉय को भागना नहीं है, आग बुझाना है, मर गया तो चलेगा. ऐसा ट्रेनिंग पॉसिबल है? ताज होटल 2008, टेररिस्ट केम इन, नॉट अ सिंगल एम्प्लॉय लेफ्ट. दैट इज़ द पावर ऑफ द कल्चर, दैट इज़ द पावर ऑफ अ गुड लीडर. क्यों? उन्हें पता था कि काम करते करते, हमारा धर्म निभाते निभाते कुछ हो गया, मैनेजमेंट लीडरशिप विल टेक केयर ऑफ अस, आवर फैमिली. And we have seen the example, right? They have taken care of all the families. All the families. आप इमेजिन नहीं कर अंकित, बाहर देयर वाज अ वेंडर हु सोल्ड बलून्स. उसको अनफॉर्चुनेटली गोली लग गया, वो बेचारा मर गया. उसके बेटे का एजुकेशन रतन टाटा साहब ने बोल दिया, भाई दिस टाटा ट्रस्ट विल टेक केयर. सो ट्रस्ट लॉन्ग टर्म इज अ बिग एसेट विच विल गिव यू ट्रस्ट. और आप देखो यही हुआ. एक टाइम था कि ट्रस्ट के साथ साथ आपका स्किल नहीं है, बेसिक नहीं, तो आप नहीं जीतोगे. आज टाटा मोटर्स ने डिस्टर्ब कर दिया इंडस्ट्री. मारुति वॉज ऑलवेज नंबर 1, आज भी नंबर 1 है, लेकिन नंबर 2 पे हुंडई था, बाकी सब थे. आज टाटा ने तोड़ दिया. पीपल ट्रस्ट द ब्रांड, पीपल लाइक द न्यू डिज़ाइन, दे आर कमिंग अप विथ न्यू EV डिज़ाइंस, न्यू स्किल डिज़ाइंस. तो द ट्रस्ट विल ऑलवेज हेल्प यू. So was it because of, मतलब, especially in this case, was it because of very long time ago Mr. Ratan Tata invested in Land Rover, Range Rover, and because of which they are getting the benefit of, in terms of design, in terms of quality of cars right now, and the acceptability has come now. So JLR investment has not helped Tata Motors per se. It is still a loss-making investment for them. वो थोड़ा उन्होंने एक स्वमान में, सेल्फ रिस्पेक्ट में ले लिया कि भाई तुम इंडियंस को मिसजज क्यों कर रहे हो. देयर प्योरली स्पीकिंग स्ट्रैटेजी टर्म्स दे डिड 3 थिंग्स राइट. फर्स्ट इज EV का टाइमिंग क्रैक किया. EV कोई नहीं है, आज भी 75% पैसेंजर व्हीकल मार्केट शेयर टाटा हैज़. टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, टाटा टियागो आप ले लो. सेकेंड इज दे क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म. टाटा ने एक चीज़ सोच लिया भाई कि हम काम करेंगे सेफ्टी, रिलायबिलिटी और डिज़ाइन पे. तो दे क्रिएटेड वन कॉमन प्लेटफॉर्म. वही प्लेटफॉर्म पे अब सफारी बना रहे हैं, नेक्सा बना रहे हैं, सब गाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं. सो दे हैव मेड देयर गुड डिज़ाइन एंड आर स्केलिंग देयर डिज़ाइन. एंड थर्ड, उन्होंने टाटा का जो सर्विस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया. आई गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल. आई हैव अ टाटा नेक्सॉन EV. आई लाइक द कार. हमने जब बाई किया तब गवर्नमेंट का सब्सिडी चालू था, फेम सब्सिडी. आई वेंट टू अ टाटा शोरूम, और ये सिर्फ टाटा ग्रुप के ही लोग या उनके फ्रेंचाइजी कर सकते हैं. उन्होंने बोल दिया कि सर ये जो सब्सिडी है 1 लाख 1.5 लाख जो भी था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट, ये अभी भी गवर्नमेंट में थोड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं है. सो यू जस्ट साइन अ पीस ऑफ लेटर सेइंग दैट इफ दिस सब्सिडी इज नॉट गिवन, यू पे अस द सब्सिडी. आज हम वो अमाउंट काट के आपको दे रहे. दुनिया का कौन सा बिजनेस ऐसे रिस्क में अपने जेब से वो रिस्क पे अमाउंट देगा? ओनली टाटा ग्रुप, विच इज़ वाई दे हैव द ट्रस्ट. सो स्ट्रैटेजी के साथ ट्रस्ट आप कंबाइन करो, स्किल्स कंबाइन करो, आपका ग्रोथ 10x होगा. मतलब इट इज़ वेरी ईजियर सेड देन डन, राइट? आज सबको विजन बिल्ड करना नहीं आता है. कोई भी बोल देगा कि हाँ ठीक है, आई एम डूइंग 1 CR इन बिजनेस राइट नाउ,
आई वॉन्ट टू हैव 100-member कंपनी जो 100 crore का टर्न ओवर करेगा, बट हाउ प्रैक्टिकल इज इट, उसमें क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, वॉट स्टेप्स आई नीड टू टेक माई वे, हु कैन आई टेक एज अ मेंटर. So how do you help these your community companies? How do you identify these challenges and help them build that vision? Because it is not at all easier. Yes. It is not. It is much more than a definition that we all know, right? Yes. So two things. I'll break this into two parts. First, external help is needed. Why? आप अपने खुद के बच्चे को पढ़ाते हो क्या? इंडिया में होम स्कूलिंग इज़ नॉट पॉपुलर और नहीं होना भी नहीं चाहिए. क्यों? आपको आता सब कुछ है बट आप खुद के बच्चे को पढ़ाते नहीं हो क्योंकि वो सुनेगा नहीं. सेम वे आप अपने टीम को रोज बोल नहीं सकते, वो सुनेगा नहीं कि यार ओनर इज मैड, मैनेजमेंट इज बैड. सेकेंड, कैन यू चेक योर ओन एग्जाम पेपर? आपने एग्जाम पेपर लिख लिया, यू बी लाइक आई शुड गेट एटलीस्ट 95, बेस्ट लिखा है. टीचर आएगी 2 मिनट में रेड मार्क्स -5 -10 50 मार्क्स पे लेके आएगी. तो आईना दिखाने वाला बाहर का ही आदमी चाहिए. थर्ड, स्पेशली इन बिजनेस वे देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स और फैमिलीज इन्वॉल्व्ड, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, इमोशनल ध्यान. अगर आप अपने पार्टनर को बोल दो बॉस यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू प्रॉफिट, वो 10 चीज़ आपको बोल देगा. तू टाइम पे नहीं आ रहा है, तू खर्चे बहुत कर रहा है, तेरा भी ये सब लफड़ा चालू है. यू नीड थर्ड पार्टी, थर्ड एम्पायर टू मेंटोर और टू बी अ न्यूट्रल पार्टी, विच इज़ वाई फैमिली बिजनेसेस कम अ लॉट टू अस सेइंग दैट सर हमें पता है क्या करना है, आप खाली एक न्यूट्रल करके हमें गाइड करो तो हमारा ईगो हर्ट नहीं होगा, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होगा. Now, how do we do that? It's a simple 5-step process. बहुत सिंपल प्रोसेस है. किसको भी करवाना है, any competent guy, take external help, do it. First, get your blood test done. Okay. When Why blood test? Before I give any medicine, I have to ensure कि भाई तुम्हारा हेमोग्लोबिन, तुम्हारा लीवर सब ठीक ठाक है. So blood test means audit your business. Okay. What When is you say audit, is it financial audit or everything? like I said, 3 things matter: people, Right. money, Correct. and customer feedback. Correct. So इसमें सब आ गया. इनडायरेक्टली तुम्हारा प्रोडक्ट, आपका प्रोसेस सब आ गया. सो एनी पर्सन हु अंडरस्टैंड्स बिजनेस, इफ दे जस्ट चेक योर फाइनेंस कि कितना मार्जिन है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कैश फ्लो क्या है, लेवरेज क्या है, इफ दे चेक योर टीम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, उनका एनर्जी लेवल, पैशन क्या है, इफ दे टॉक टू योर कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स कि कस्टमर्स क्या फीडबैक दे रहे हैं, रिपीट ऑर्डर्स ले रहे कि नहीं दे रहे, मार्जिन्स के लिए दबा रहे हैं, पेमेंट कैसे दे रहे, ये 3 चीज़ करके 5 मिनट में या वॉट एवर टाइम में आदमी को आइडिया आ जाता है. आफ्टर ऑडिट, स्टेप नंबर 2, ऑलवेज वेन एवर यू वॉन्ट टू वर्क ऑन योर कल्चर, फाइंड योर ओन यूनिक एक्स फैक्टर. Okay. देखो स्ट्रैटेजी का सबसे आज आपको बढ़िया लाइन दूंगा. नेवर से आई एम बेटर, Very vague. नेवर से आई एम बेस्ट. बेस्ट भी बोलोगे तो आप हार जाओगे. It is not quantifiable. नो, स्ट्रैटेजी मीन्स आई एम द ओनली पर्सन हु कैन डू दिस. जिस दिन आप ये बोल सकते हो उस दिन आप धंधा कर पाओगे. व्हेन आई से आई एम बेटर देन मोस्ट, तो भाई तो आज बेटर है, कल शायद ना हो. व्हेन यू से आई एम बेस्ट, कल तो नंबर 2 हो सकता है. बट व्हेन यू से एंड यू आर एबल टू प्रूव थ्रू मार्केटिंग, पोजिशनिंग कि ये एस्पेक्ट में वी आर द बेस्ट. जैसे मारुति बोल सकता है कि गाड़ी में सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, वी आर द बेस्ट. BMW बोल सकता है कि भाई इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी और ड्राइविंग प्लेजर वी आर द बेस्ट. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. इनोवा बोल सकता है कि फॉर आउट स्टेशन ट्रैवलिंग, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, वी आर द बेस्ट. गाड़ियाँ हैं लेकिन 10 जन अलग अलग चीज़ में बेस्ट हो सकते हैं और धंधा है सबके लिए. बट अगर आपस में अगर मैं एक नया गाड़ी लॉन्च करूँ और मैं बोलूँ मैं मारुति जैसा ही सबसे सस्ता हूँ, आई विल नॉट सर्वाइव. आई हैव टू कम अप विद न्यू फीचर. मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में बेस्ट हूँ, Like Tata is positioning now. यस. मैं डिज़ाइन में बेस्ट हूँ, हुंडई. मैं फीचर्स में बेस्ट हूँ, मैं एस्पिरेशंस में बेस्ट हूँ, मैं शेयर ड्राइविंग और सेफ्टी में बेस्ट हूँ, फॉक्सवैगन. तो यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एट बेस्ट. तो वो आप आइडेंटिफाई कर लो, दैट्स हाफ द बैटल डन. थर्ड, कल्चर बनाना है. आइडेंटिफाई योर कोर टीम. नहीं है तो भी बनाओ, खुद को फ्री करो. द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू ऑल एंटरप्रेन्योर्स इज अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख लो ऑफ पोस्ट डेटेड. As on Then 2027. I want to resign from all my duties, Exactly. not from business. Yes, I will not be a CEO. I'll be an advisor. I'll be a chairman. I'll be a board member. But मैं रामू काका नहीं बनूंगा. CEO भी फैंसी टाइटल है, मैं रामू काका नहीं बनना चाहता. तो थर्ड इज डिप्यूट टीम्स बनाओ. फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, हैव मेजरमेंट टूल्स. बिना मेजरमेंट का कुछ होगा नहीं. आई एम श्योर अंकित और बसेश ने बहुत बार ट्राई करेगा सर हम वेट लॉस करेंगे, लेकिन बिफोर स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग स्केल, मेजरिंग योर इंचेस,
measuring the calories, measuring the workout intensity, आपका weight loss नहीं होने वाला है. धंधा Because करेंगे. you don't know which direction you're moving in. Yes, what you measure can be improved. What you measure can create positive pressure. So measurement करो. And fifth is create a culture where you grow together. कि भाई प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बसेस गाला घर पे लेके जाएगा, वो एम्प्लॉय सोचेगा साला मर रहा मैं हूँ, मलाई खा रहा है ये मोटा, मन में तो सोचता है ना, ये होता है ना अंकित भाई एम्प्लॉय. बट आप शेयर करो, योर डायरेक्टर, यू गेट दिस मच बोनस, यू गेट दिस मच प्रॉफिट शेयरिंग, देन दे विल फील हाँ ये हमारा भी कंपनी है, आई हैव सम अपॉर्चुनिटी. So is it about opening up to but at every level with your team members or at least with your top management? Definitely level 2, level 3. Your department heads and their next line, they should have some visibility. भले आप उनको दो नहीं, बट उनको बोलो कि ये लेवल तक हम पहुंचेंगे और ये लेवल तक आप परफॉर्म करोगे तो आपको ये मिलेगा. क्योंकि सर बांटोगे तो मिलेगा. आई ऑलवेज टेल ऑल माई कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर्स वन थिंग, बहुत सिंपल चीज़ है भाई, आपको 1 किलो का केक खाना है और पूरा अकेले खाना है, या 100 किलो का केक करना है और वो 5 किलो खाना है. तो आप ये मत सोचो कि यार मैं आधा केक खा रहा हूँ, भाई 1 किलो का 100 किलो हो गया, वो तो सोचो. तो ये 5 स्टेप्स करो, So आपका शेयर भी बड़ा होगा. विनिंग कल्चर होगा, एंड यू गेट फ्री बॉस, यू गेट फ्री, यू कैन गो ऑन वेकेशन, यू कैन बिल्ड स्किल्स, यू कैन हैव मार्केट पल्स, यू कैन मीट न्यू कस्टमर्स, इनोवेट. आप फ्री हो. नहीं तो वही कैश काउंटर पे बैठना, कॉल्स पे बैठना, OTP देना, वही रामू काकागिरी करना है तो फिर. And this is the biggest mistake I think today's entrepreneurs are doing, right? यस. They don't want to get out, और वो छूटता नहीं है, बोलते ना कि ये मेरी कंपनी है, मैंने बिल्ड की है या मैंने इनोवेट किया है, मैंने आइडिया लाया है, तो मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा सामने. दो चीज बोलता हूँ, एक तो वो छोड़ते नहीं है. क्यों? Correct. क्योंकि सिस्टम नहीं है. सिस्टम नहीं है. जिस दिन सिस्टम का तो मजा आ भरोसा गया, नहीं है कि कौन करेगा. आप मानोगे नहीं. आई हैव रिटेल चेन स्टोर्स ऑल्सो, आई एम अ रिटेलर, और मैं रिटेल स्टोर्स में महीने में 1 घंटा जाता हूँ और बटन दबाते दबाते सबका अटेंडेंस, GP, इन्वेंट्री, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर फीडबैक आ जाता है. शायद मैं वहाँ पे बैठता तो 10% प्रॉफिट कमाता, लेकिन फिर एक ही बिजनेस करता. आज रियल एस्टेट कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, रिटेलर हूँ, सर्विस बिजनेस हूँ, इन्वेस्टर हूँ और लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ. एवरी मंथ 1 वीक आई गो फॉर वेकेशन, एवरी मंथ. फैमिली को टाइम दो, मेडिटेट करो. बॉडी को निग्लेक्ट किया था इतने साल, थोड़ा भी बॉडी पे सीरियस है, वी आर वर्किंग आउट, वॉक, योगा, ये होता है बिजनेस. डेफिनेशन ऑफ बिजनेस आज जितने भी लोग सुन रहे हैं डाल दो, यू गेट ओनली 1000 days टू सेट अप अ बिजनेस. आफ्टर 1000 days अगर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, देन यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर नॉट अ एंटरप्रेन्योर. 1000 days में क्रिएट सिस्टम्स, वर्क ऑन स्ट्रैटेजी, क्रिएट गुड टीम्स, एंड योर जॉब इज टू जस्ट डू द सेल्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग. But we've been hearing that these 1000 days have now become 5000 days. लोग बोलते हैं ऐसे. मैं उल्टा बोलता हूँ. यू गिव मी 180 days, आई विल क्रिएट कल्चर एंड ऑटोमोट फॉर यू. 180 days प्रोवन साइंस है, प्रोवाइडेड ऑफकोर्स यू ऑल्सो कॉपरेट. आप फोन स्विच ऑफ ही कर दोगे, मैं कितना भी कॉल करूँ लगेगा नहीं. आप कॉपरेट करो, आप ओपन करो. 180 days दिस प्रोसेस विल स्टार्ट एंड देन दैट प्रोसेस विल कीप कंटिन्यू. So what are these processes that help an entrepreneur or that you help set up in your community, entrepreneurs, companies? What are some basic processes that anyone I'll can just tell set you, up? just do 3 things. I'll again repeat. एक तो ऑडिट करवा लो. Correct. And that वो should तो आपने बोला, हाँ. that should happen every year. Second is have goals and have them written. And goals, आपको लगता है सिर्फ सेल्स गोल्स है, ऐसा नहीं है. There are many types of goals. And third is every person's productivity and performance needs to be measured. When you start tracking this, automatic systems build हो जाएंगे. Even the business owner. 100% the business owners. हर एक आदमी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉस. आप इमेजिन करो कोई भी बिजनेस है, मेरे को डिस्पैच वाले का परफॉर्मेंस मेजर करना है तो डिस्पैच का प्रोसेस बन जाएगा. मेरे को जो फैक्ट्री में जो मशीन पे काम कर रहा है उसका प्रोडक्टिविटी निकालना है, प्रोसेस बन जाएगा. माइंडसेट हैज़ टू बी देयर दैट आई वांट टू इन्वेस्ट इन सिस्टम स्ट्रैटेजी. सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. लोग क्या करते हैं, सर पहले सेल्स बढ़ाऊंगा बाद में ये करूंगा. नहीं होने वाला है. ना आपकी लायकात है, ना आप सस्टेन कर पाएंगे. फर्स्ट इन्वेस्ट, क्रिएट अ गुड स्ट्रैटेजी वेयर यू कैन से आई एम द ओनली प्लेयर. देन इन्वेस्ट इन सिस्टम्स, कल्चर. सेल्स झक मार के बढ़ेगा. क्योंकि अंकित, व्हेन यू आर फ्री, मैं अपने एंटरप्रेन्योर्स को बोलता हूँ आफ्टर 1 year विथ मी, आपको ऑफिस हफ्ते में 3 दिन ही जाना है. That's it. 3 दिन के बाद ज़्यादा गए तो आप और मैं फेल. तो बाकी 3 दिन क्या करोगे आप? यू विल डू मार्केटिंग, नेटवर्किंग, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनोवेशन. धंधा बढ़ाने का ही काम करोगे बॉस. ऑपरेशन से बाहर होगे तो धंधा बढ़ेगा.
So as per you, what is more important, sales or marketing, or is it one and the same? Because it's there is a lot of confusion with a lot of people, right? They don't understand कि sales, तो सबको लगता है कि sales and marketing same है. कोई बोलता है अलग है, कोई बोलता है नहीं sales ही important है, कोई बोलता है नहीं marketing important है. तो सब important है, but there are 4 different concepts. चारों अलग है. Marketing is different, sales is different, brand and branding दोनों both are different, and last customer experience या word of mouth marketing is different. Okay. 95% एंटरप्रेन्योर्स को पूछो आप क्या मार्केटिंग करते हो, सर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग. They're part of networks, that's it. Exactly. Like BNI and others. BNI है या तो रेफरल्स है फ्रॉम करंट कस्टमर्स. इट्स बिकॉज ऑफ गुड कस्टमर एक्सपीरियंस एंड नेटवर्क. आई विल पुट दैट एज सेपरेट एज नेटवर्किंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस. मार्केटिंग का क्लियर डेफिनेशन है क्रिएट अवेयरनेस. मैंने जिम खोला है, भले आप मेरे कस्टमर नहीं हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई आधा किलोमीटर दूर एक अच्छा जिम खोला है जिसके पास स्विमिंग पूल है, यानी जिसको जॉइंट पेन है वो स्विमिंग पूल में जाके एक्सरसाइज कर सकता है. आई एम दी ओनली प्लेयर. एक्वाथेरेपी फॉर एग्जांपल, सम यूनिक पॉइंट. ये मार्केटिंग होता है. भले वो कस्टमर बने नहीं बने, कल उठ के जब उसको ट्राई करना है पहला आपके पास आएगा. मार्केटिंग इज क्रिएटिंग अवेयरनेस. But when we work with brands, they say कि भाई मैंने तो मार्केटिंग किया, अभी कल से सेल्स आना चाहिए. एग्जैक्टली वो समझते नहीं. सेल्स का मतलब व्हेन अ लीड कम्स यू क्वालिफाई द लीड कि उसका सीरियसनेस, अर्जेंसी क्या है, डिसीजन मेकर क्या है, और अगर वो क्वालिफाई होता है तो उसको कन्वर्ट करना सेल्स होता है. Okay. So if I ask about this, कि sales and marketing चलो both are important. What comes first, marketing or sales? ऑब्वियसली मार्केटिंग. आई टेल यू, बहुत सिंपल कहावत है. व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री? पेड़ लगाने का सबसे बेस्ट समय कौन सा है? कौन सा, मैं आपसे पूछता हूँ. व्हेन शुड यू प्लांट अ ट्री? Maybe just before the rains come. सो द बेस्ट आंसर इज, एक बच्चे ने अपने दादा को पूछा कि दादाजी पेड़ कब लगाना चाहिए. दादाजी ने बोला 20 साल पहले. तू 20 साल पहले पेड़ लगाता तो आज तुझे आम मिलते. तो वो बोलता है ठीक है, सेकेंड बेस्ट इज टुडे. आज लगा, कुछ भी हो आज लगा. मार्केटिंग ऐसा है. द अर्लियर यू स्टार्ट इज बेटर, बिकॉज इफ पीपल आर नॉट अवेयर. हम ऐसा बोलते हैं ना भाई तुम्हारे अंदर कोहिनूर है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं यहाँ पे कोहिनूर है. ऐसे बोलते ना कि मरने के बाद जन्नत मिलेगा. भाई जीते जी भी यहाँ पे जन्नत है, देखो. तो वो होता है मार्केटिंग. मार्केटिंग नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम डे वन. नाउ So marketing is awareness. If I count, marketing is awareness. Awareness and Pure. communication. Yeah. And second is, यहाँ पे थोड़ा मेरा डिफरेंट ओपिनियन है. डिपेंडिंग ऑन योर माइंड सेट एंड योर बजट, देयर कैन बी लो कॉस्ट मार्केटिंग, देयर कैन बी हाई कॉस्ट मार्केटिंग. ATL, BTL आप सब कर सकते हो. सो मार्केटिंग में ज़रूरी नहीं कि आप करोड़ों रुपया, लाखों रुपया स्पेंड करो. बट मार्केटिंग एज अ फिलोसॉफी शुड स्टार्ट फ्रॉम डे जीरो. Day zero, not even day one. डे जीरो. मार्केटिंग आज करोगे तो शायद 2, 3, 4 साल के बाद आपको उसके ऊपर सेल्स पे मेजरेबल इम्पैक्ट आएगा. जो लोग ये बोलते हैं ना, खास करके बिल्डर्स, कि मैं ऐड देता हूँ, मेरे को कल कन्वर्जन चाहिए. चलो 4 कन्वर्जन मिल गया, बट अगर आपने राइट एड्स किए, राइट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो किया, आपने एक प्रॉपर प्रोसेस, गुडविल बनाया, तो वो एक ऐड आपको 10 साल तक धीरे धीरे लीड्स नर्चर करके देगा. Correct. So marketing comes first, and it will give you leads for the sales, but obviously in long run. Yes. If you create the right awareness. Yes. So I heard you saying that you deal with a lot of family businesses. Yes. So अगर positioning की बात करें, because you also touched upon a point about positioning, what is your X factor? Sure. And I understand that is what we call as brand positioning, right? So one, what is your brand positioning of 39 Solutions or the mentoring business that you have? And how do you reach out to your right audience? Right. So I have in 39 Solutions, like I have Arivayu, my retail company. I have Kuber, which is my investment banking fundraising company. I have different companies for different. In 39 Solutions also I have 3 different programs. So one program is Rise. Rise is very clearly for MSME. And the only positioning is we are the only business mentors which do handholding and help you in implementation. कम ज्ञान, पर्सनल अटेंशन, हैंड होल्डिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन असिस्टेंस. दुनिया में 10 करते रहेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे जैसा बेस्ट कोई नहीं करता और मैं ही करता हूँ, और लोग करते हैं वो हैप्पी होते हैं. सो व्हेन वी डू दिस पोजिशनिंग, हाउ डू वी क्रिएट अवेयरनेस इज वी लॉन्च अ लॉट ऑफ स्मॉल वीडियोज. We do a lot of free or very low cost webinars or workshops. I've heard of some of them which is just for 39 rupees. 39, it goes with your brand 93. name. Yes. The reason is people come and attend. आप सुनो, जो सुनता है वो आज नहीं तो 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं किधर ना किधर जुड़ता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है ऑथेंटिसिटी. ब्रांड के कुछ प्रिंसिपल्स है, ऑथेंटिक है, एग्जाम्पल्स है, कनेक्टिविटी है, पर्सनल अटेंशन है. तो दैट इज राइज. फॉर फैमिली बिजनेस आई हैव अ सेपरेट प्रोग्राम कॉल्ड एज वाइज.
Oh, okay. बिकॉज एक ही में मैं खिचड़ी कभी करता नहीं हूँ. मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा प्लेस शुड गिव ओनली पिज़्ज़ा. आप वहाँ पे जाके पाव भाजी मांगोगे तो मज़ा नहीं आएगा. इट्स नॉट स्केलेबल. तो पाव भाजी के लिए या तो आप मल्टी जॉइंट सेंटर बना दो या सेपरेट एक फास्ट फूड सेंटर बना दो. सो आई हैव अ सेपरेट प्रोग्राम कॉल्ड वाइस विच इज़ अ वेरी फोकस्ड फैमिली बिजनेस प्रोग्राम. And where there are certain format templates where 80% time goes into getting the clarity, the vision, the mission, the goals, the style, the role responsibilities. एक बार वो हो गया फिर उनको वाइज में से फिर राइस में डाल देते हो. एक बार आप अग्री करते हो. So the ultimate what do you call the plan or Yes, rice. the process that you go with you is rice. बट बिफोर दे कम टू राइस, क्योंकि राइस में हमें एग्जीक्यूट करना है. बट एग्जीक्यूट क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, आपस में झगड़े कैसे रहेंगे, सैलरी कौन लेगा, प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा, वो सब वाइज में क्लैरिटी है. गेट वाइज, ओनली आफ्टर यू गेट वाइज विल यू राइज इन लाइफ. तो वैसा हमारा एक सेपरेट प्रोग्राम है. Okay, okay. And why this brand name 39? ओ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई केम फ्रॉम यूएस. तो यूएस से आया, मैं बोला कंपनी स्टार्ट करते हैं. सो आई यू नो द लोगो इफ़ यू सी एंड यू नो इन द पॉडकास्ट आई रिक्वेस्ट ये लोगो अगर आपको दिखेगा. सो 3 and 9 बिकम अ की. ये 3 है एंड द 9, सो इट बिकम्स अ की. सो बेसिकली सॉल्यूशंस. मोर इम्पॉर्टेंटली मोस्ट सर्विस कंपनीज आर नेम्ड आफ्टर द फाउंडर्स. मैकेंजी, अर्नस्ट एंड यंग, डेलॉयट, ये सब नाम या सरनेम है. अब मैं गाला कंसल्टिंग रखूँ तो भाई गाला प्लम्बर भी है, गाला स्टेशनरी भी है, तो गाला कंसल्टिंग इंटरनेशनल फील नहीं आता. सो 3 represents B. आप 3 को विजुलाइज करो तो इट इज हाफ B. 9 इज लाइक G. Oh, तो okay. BG बसेश Oh, गाला, तो okay, बसेश गाला okay. सॉल्यूशंस. Wonderful. एंड देन देयर इज मोर स्टोरी टू दिस. वी हैव अ फ्रेमवर्क विच हैज 39 स्टेप्स. आप वो 39 स्टेप्स चेकलिस्ट को फॉलो करो, आपका राइस कोर्स पूरा हो जाएगा. सेकेंड इज आर टैगलाइन इज ट्रिपल योर प्रॉफिट्स, 9x योर प्रोडक्टिविटी. सो दैट यू जस्ट वर्क यू नो 1 day a week, बाकी दिन आप काम मत करो, ऑटो मोड पे काम होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी. सो 3 is a number of planet Jupiter, Guru. Okay. 9 is again the the angle of spirituality. yes, in the angle of spirituality बोलो या आप थोड़ा इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोल दो, न्यूमरोलॉजी बोल दो. 9 is the number of planet मंगल, बिल्डर्स का फेवरेट नंबर है. तो ये कंपनी गुरु बन के आपका मंगल करेगा. वैसा हमारा स्टोरी है. So you said you read a lot of books. Which is one book or top 3 books that you would like to recommend it to maybe say a 23-24-year-old who wants to start a new business? Anyone who can read and understand. Atomic Habits पढ़ना चाहिए. I think habits lead to discipline. Second book which I think gives a lot of clarity, you know, जो मैं बोल रहा था कि Let Your Work Talk is Good to Great by Jim Collins. बहुत सुंदर बुक है. Third, again very simple book is Dale Carnegie, How to Make Friends and Influence People. 3 books because ultimately EQ teamwork आ गया आपका ये अंदर डिसिप्लिन आ गया और आपके अंदर हैबिट्स आ गया. दिस 3 things are good and then keep meeting a lot of people and keep reading. It will always help you. And I think in the beginning we discussed that you help businesses 10x or 100x in their professional journey. So how do you help them scale, or how has the 39 Solutions scaled from just one? I think the first business that you started was coaching, mentoring, Yes. and then from that I think you run 6 different businesses. So how did you start and how did you scale them? So whatever we teach, we implement. So first create auto mode for our own business so that I can get free. Limit your time. 180 days for one business. Yes, 180 days, that's enough. Sometimes it may take more, but the philosophy is there. So in the last 3 years or so, we because we have made decent money also, we have a good community. My family business into real estate, so we have real estate projects. Investors मिल जाते हैं, they trust us. Trust is a big commodity. Second is I have retail chain stores. तो वहाँ पे सिर्फ 3 months I set on my retail chain store only for 90 days. 90 days में आइटम मास्टर से लेके गुड GRN प्रोसेस, सब प्रोसेस सेट किया. दुनिया को सिखाते हैं, खुद नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब. 90 days करके एक CEO को अपॉइंट किया, उसको अपॉइंट कर दिया. नाउ आई जस्ट डू 1 hour वीकली मीटिंग्स विद हिम, गेट माई डेटा, आई एम फ्री. Similarly, set up a manufacturing business. So we have done that. Whatever we Manufacturing teach, into again Ayurvedic and herbal Ayurvedic natural products. Okay. We are launching our own range because I think India's time is there. A lot of safe products are there. You know, if you consume, no side effects, good for your immunity, good for wellness. So that we have started. And like I said, there's one more arm which I'm very passionate is the investment fundraising arm. I was about to come to that. Yes. So we have done a lot of SME IPOs, mainboard IPOs, valuations, you know, angel investment, incubations. And just to answer your other question also,
till date we have helped 40 companies achieve 100x. So SME IPO, main board IPO, mega valuations, or good debt funding where they've been able to scale. So what are some points that you consider before investing in a startup or 5 in points. someone? 5 points. Pehla, आदमी, like I say, कि he should walk the talk, his mindset, his execution ability. I always say execution. Second, of course, is the idea. And in the idea, we see how unique is the idea. कि भाई ये आइडिया pragmatic है, ये तारे ज़मीन पे है कि भाई तारे आकाश में. A lot of people come, saying that, hey, I'll just give interesting insight. एक आदमी आया मेरे पास और बोलता कि kamwalibai.com, सर मैं बना रहा हूँ. We've heard. ऐसे बहुत सारे नाम है, बना रहा हूँ और मुझे सर आप 50 लाख रुपीज़ दे दो पायलट के लिए. मैंने बोला दिया, तेरे को काम वाली सोर्स करके कौन देगा? बोलते सर मेरे घर पे मौसी आती है, वो मौसी के कनेक्शंस है. मैंने बोल दिया भाई ठीक है, मौसी को बोल मैं उसको फंडिंग दूंगा, तेरे को फंडिंग नहीं दूंगा. सो आइडिया इज हाउ प्रैक्टिकल दैट आइडिया इज, हाउ डिफेंडेबल दैट आइडिया इज, व्हाट इज द मोट. Yeah, what is the moat? Most important, how can you defend that idea? Or how have you built your entry barriers for your competition? The moat, yes. Yeah. Third, of course, is we look at proof of concept. Ideally, we want a small proof of concept, a small sample, a small demo, which happens. Fourth, we look, most important ability is ability to manage finance. Yeah, most important. Finance में people abuse. Funding मिल गया, 2 लाख रुपए का डस्टबिन लेंगे, 10 लाख रुपए में बाथरूम में एक्सेसरीज. भाई आई बिलीव इन फ्रूगैलिटी, सिंपल लिविंग. आई हैव अ मर्सिडीज बट आई ट्रैवल इन टाटा नेक्सॉन ईवी. सिंपल भाई, क्यों फालतू में गाड़ी है, किसको दिखाना है, आई नो माई वर्थ, राइट. तो फ्रूगैलिटी, इन्वेस्ट वेर एवर इज रिक्वायर्ड. एंड फिफ्थ इज एबिलिटी टू क्रिएट अवेयरनेस. Ability to create awareness. इनडायरेक्टली योर मार्केटिंग, PR एंड नेटवर्किंग. अगर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, PR नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है. वी कैन हेल्प इन दैट, बट हाउ ओपन यू आर, सो वी ऑलवेज लुक एट, अगर फर्स्ट 4 थिंग्स है और मार्केटिंग पुअर है तो वी हैव सेट एजेंसीज, वी हैव सेट पीपल, वी ओपन डोर्स फॉर देम. बट अल्टीमेटली इट्स द माइंडसेट, द आइडिया, द मोट, द एग्जीक्यूशन एबिलिटी. ये 4 चीज़ें डाल देंगे. So ये चारों चीज़ें होनी चाहिए उसके, without which you won't invest. There are certain secrets which I'll tell you. We hesitate to invest in one person or one founder startups. Too much dependency on one person. उसको कुछ हो गया, उसका नसीब खराब हो गया. नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, बट कभी खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बीजेपी का क्या होगा? तो create more leaders. So we look at the core team or the founders. So we look at all small things, but prima facie these 4 things. I just want to ask you, right? People are saying कि अभी funding winter चल रहा है. बॉम्बे में गर्मी है बट फंडिंग विंटर चल रहा है. So what is your take on it? मतलब we have obviously seen कि भाई पहले तो आइडिया पे पैसे मिलते थे, अभी नहीं मिलते. No, please understand फंडिंग विंटर आया कैसे. 30 seconds will understand. कोविड आया, all the central banks were printing money कि लोगों के पास स्टिमुलस आए, people don't get into depression. फ्री मनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने हाईजैक किया. They are borrowing funds at 0%, 1%, and they don't want to miss out the next opportunity. Byju's worth $2 billion, कर दो $22 billion. So funding happened because they had access to free money, cheap money, and people were like, let them prove. Was it coming from just one country? US. US? Yes, Yeah, US. they were printing free money. The Fed printed more money than it printed in the last 20-30 years, trillions of dollars. So of course वहाँ से है, and then a lot of people carried away. And investor का एक पर्पस होता है भाई, I should make money. Exit. कंपनी जिए, मेरा मरे, exit क्या होगा? मेरा exit. तो most investors have made money. देखो शिल्पा शेट्टी has made money. SoftBank has made money. Tiger Global has made money. लास्ट में या तो कंपनी में लास्ट इन्वेस्टर्स या IPO करके आपके और मेरे हाथ में कटोरा आ जाते हैं. सो फंडिंग विंटर हैज़ गॉन बिकॉज ये काइंड ऑफ मिनी स्कैम या अनअवेयरनेस बाहर आ गया. अल्टीमेटली बिजनेस नीड्स टू जनरेट कैश फ्लो. भाई देखो अंबानी भी है, अंबानी फ्री का कितना दिन दिया, आदत लग गया, उसके बाद भाई 100, 200, 300, 400, 500, अब तो 2000, 3000 भी लोग भर रहे साल का. अल्टीमेटली बिजनेस नीड्स टू जनरेट कैश फ्लो एंड प्रॉफिट. उसके बिना उसको बिजनेस नहीं कहते. तो दैट प्रेशर हैज़ कम. सो नाउ funding is limited available, people are scared, so they want to look at proof of concept और a sure shot confidence कि भाई ये 3 साल 4 साल में कन्वर्ट हो जाएगा. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जोमेटो वॉज बर्निंग कैश, IPO आ गया, फिर उस पर प्रेशर आया. जोमेटो ने 2 चीज़ अच्छे किए. क्या किया? एक तो भाई उन्होंने डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए, जोमेटो की मेंबरशिप बढ़ा दी और प्लेटफॉर्म फीस चार्ज कर रहे. अभी आपको लगता है बसेश भाई 5 रुपया प्लेटफॉर्म फीस से क्या होगा? But वो 5 रुपये के कारण
they've come into profit. Yeah. This single platform fee of 5 rupees per order has helped them come to profit. रेस्टोरेंट से 20-30% ले लो, मेंबरशिप का चार्ज ले लो, डिलीवरी चार्ज ले लो और 5 rupees प्लेटफॉर्म फीस ले लो. So now pressure is on generating profit. So if you have a good business idea, you are short of generating cash flow and you need decent funds. Funds available है, but पहले जैसे हवा था, टाइम पास था, हलवा था, वो नहीं है. बट वी हर्ड स्टार्टअप फाउंडर्स टेलिंग कि भाई अगर कोई नया एकदम इनोवेटिव आइडिया है, कैटेगरी क्रिएशन का जो बात होता है जिसमें यू नीड टू बर्न मनी, जैसे उबर था, इट वाज अ कैटेगरी क्रिएशन आइडिया, राइट? जोमेटो था, इट वाज अ कैटेगरी क्रिएशन आइडिया, एंड दे ऑल बिलीव एंड दे ऑल से कि भाई अगर मुझे कैटेगरी क्रिएशन करना है पहले मुझे आदत लगानी पड़ेगी कंज्यूमर को. Yes, agreed. So your question is कि category creation में you need to burn money. Yeah. Will that money be available today? Yes, difficult, but available only if you are known and you have network. If you know the big people know you, your credibility is there. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोगों को पसंद नहीं आएगा. कुणाल शाह ने लाइफ में कैश फ्लो पॉजिटिव अचीव नहीं किया है. भाई उन्होंने भाई फ्री चार्ज लॉन्च किया, क्या हुआ किसको कुछ पता नहीं, बेच दिया आगे, बेच दिया. बट वेयर इज द प्रॉफिट? the company is not making profits. Company is not making profit and he companies, made profits and he exited. that's personal. Yeah, that's personal. But people like him. He has a track record. People believe that he has a vision. क्रेड को भी फंडिंग मिल रहा है. आप देखो कि यार प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, गोविंदा को नचा रहा है, क्रिकेटर्स को नचा रहा है, पर फंडिंग मिल रहा है. सो इफ कुणाल शाह कैन गेट फंडिंग, why can't you? Because he has a vision and he has network. People trust him. People think he has the ability to change the world like Elon Musk. तो उसको मिल रहा है. इन्वेस्टमेंट ट्रेंड तो चलो ये हो गया, ये तो मतलब आइडिया स्टेज पे या मी टू लेवल बिजनेसेस को फंडिंग नहीं मिलने वाला है. नहीं मिलेगा. Right? और If अच्छा है, you- नहीं मिलना चाहिए. Right. बिकॉज माई MSMEs आर गेटिंग डिसरप्टेड. ये इमेजिन वो बेचारा बनिया है, दुकानदार है, अमेजोन आ गया, लॉसेस कर रहा है, उसका धंधा कम हो गया, उसके बाजू में फिर और 2 स्टार्टअप्स आ रहे हैं, दुकानदार आ रहे हैं, दे आर नॉट वरीड अबाउट प्रॉफिट्स. हाउ विल ही सर्वाइव? सो धीरे धीरे MSMEs आर नाउ गेटिंग सिस्टमैटिक, दे आर टेकिंग एक्सेस ऑफ फॉर्मल फंड्स, लोन्स एंड दे विल सर्वाइव. एंड इंडिया नीड्स MSME टू सर्वाइव. इंडिया USA जैसा नहीं बनना चाहिए जहाँ पे सिर्फ मेगा चेन स्टोर्स है, अमेजोन है, बड़े कॉर्पोरेट्स है और बहुत नीश मॉम एंड पॉप स्टोर्स है. वी आर अ कंट्री ऑफ 140 करोड़ पीपल. बिगेस्ट हेडेक फॉर एनी गवर्नमेंट इज जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन. एक छोटा MSME आप और मैं भी कंबाइंड 10, 20, 50, 100 जन को एम्प्लॉयमेंट देते हैं. एक मैकेंजी आएगा या एक ब्रांडिंग एजेंसी आएगा और अगर 10 बसेश को और 10 अंकित को बंद कर देगा, वेयर इज द जॉब क्रिएशन? So there has to be MSME to ensure job creation and for niche services. आप इंडिया में देखो आज की तारीख में भी लास्ट माइल डिलीवरी कौन कर रहा है? पोस्ट ऑफिस. अब देखो सिटी में आपको लगता है ब्लिंकिट है, आप रूरल एरिया में एकदम कोने में जाओ, वहाँ पे ब्लिंकिट, अमेजोन, स्विगी आज भी नहीं है. पोस्ट ऑफिस है. हमारा MSME, हमारे छोटे लोग, हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज भी कर रहे हैं. सो देयर नीड्स टू बी एन इकोसिस्टम वेयर एवरीवन सर्वाइव्स एंड थ्राइव्स. सिर्फ स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट्स रहेंगे तो फिर आज जैसे जियो पहले फ्री देके आज 3,000 रुपये का पैक बेचता है, आदत दिला के. कल 30,000. आपके पास ऑप्शन क्या है? डेटा की आदत. बिकॉज आपने ही वो मोनोपोली क्रिएट कर लिए खुद के लिए. एक कहानी है ना कि भाई मैंने दावत दिया, लोगों को बोला अनलिमिटेड खाना खाओ, आ गए अंदर, बाहर ताला लगा दिया, अब बाहर जाने का पैसा है, बाथरूम भी यूज करने का पैसा है. तो ये हो गया, विच इज वेयर आई थिंक गवर्नमेंट शुड हैव, जो उनका एक एजेंसी है जिसे हम कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या कंपटीशन के एजेंसीज, दे शुड बी मोर प्रोएक्टिव एंड एंश्योर कि एटलीस्ट देयर आर 5 to 7 गुड प्लेयर्स इन इंडस्ट्री. 2 या 3 प्लेयर्स रहेंगे तो इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा है. ओके. सो कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी कंपटीशन होना ज़रूरी है. दैट्स वेयर द बिजनेसेस कैन थ्राइव एंड सर्वाइव एंड ग्रो. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स अज्यूम आपका फेवरेट हीरो कौन है अंकित? Whom do you like? अमिताभ बच्चन. अगर हर मूवी में अमिताभ बच्चन ही आए, रोमांटिक मूवी में भी, एक्शन मूवी में भी, यू नीड वेराइटी. और अगर हर मूवी में अमिताभ बच्चन सर आने लग गए, शायद उनके अंदर जो पैशन है वो भी खत्म हो जाएगा. KBC में भी वो है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी भी वो है, अनुपमा में भी वो है, नहीं मजा आएगा. यू नीड कॉम्पिटिशन, यू नीड वेराइटी, यू नीड चॉइसेस सो दैट इट एज इज देयर. अक्षय कुमार साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और वो बोल रहा था कि अगर ये यंग एक्टर्स नहीं आते, ये टाइगर श्रॉफ नहीं आता, ही वुड नॉट पुश मी टू बी फिट. करेक्ट. आई एम स्टिल फिट टुडे. कंपटीशन नहीं होगा तो कंपटीशन है, आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ. अच्छा है ना, कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए. सो बट MSME की अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, सो इफ यू माइट हैव सम डेटा ऑन दिस, अगर 100% MSMEs की बात करें तो उसमें से कितने MSME बिजनेस ओनर्स हैं
जो सेकेंड थर्ड जनरेशन है, राइट, या ऑलरेडी एट द रिटायरिंग एज है, एंड कितने MSMEs हैं हु आर जस्ट स्टार्टअप्स एंड बहुत ही यंग लोग हैं उसमें? डू यू हैव एनी नंबर So ऑन दैट? let's assume first generation businesses MSME will be less than 20% for sure. 20-25% से कम ही रहेंगे. या तो वो स्टार्टअप्स कर देंगे या तो वो एजेंसीज बना लेंगे, फ्रीलांसर एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसीज, डिजिटल एजेंसीज. बिजनेसेस करने वाले लेस देन 20%. अब ये 80% वाले जो है ना, इवन इफ दे आर फर्स्ट जनरेशन दे विल बी 55-60. अब उनका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? उनके बच्चे को उन्होंने सब कुछ बेच दिया, पढ़ाई, कपड़ा, नॉलेज बेच दिया, लेकिन बिजनेस रामू काका जैसे ही किया. बच्चे आना नहीं So I चाहते. was coming to this point कि जो ये MSMEs का जो प्रॉब्लम है कि they don't want to build processes, they don't want to build systems and structures. Is it because of their mindset कि मैंने आज ये धंधा ये लेवल तक खड़ा किया without businesses and without processes and structures? अब तू मुझे मत सिखाने आ कि भाई ये क्यों होना चाहिए मेरे बिजनेस में. एग्जैक्टली. देखो उनके लिए, और वो ज़माने में राइट था, उनके लिए धंधा करना यानी दुकान पे बैठना, गल्ले पे बैठना, फैक्ट्री पे खड़े रहना. उनके यहाँ पे उनको कभी किसी ने बोला नहीं कि ऐसा एक्सपांशन हो सकता है. और आज उन्हें पता चल रहा है एक्सपांशन हो रहा है, तो दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट. तो द पॉइंट आई वाज मेकिंग अंकित जी, कि उन्होंने बिजनेस बनाया बहुत बढ़िया, लेकिन उनके बच्चे बिजनेस में आना नहीं चाहते. नहीं आना चाहते. ना उन्होंने बिजनेस को ऐसे प्रोफेशनलाइज किया है कि भाई मैं डायरेक्टर खड़ा कर दूँ, CEO खड़ा कर दूँ, वो रन करे और मेरे बच्चे को डिविडेंड प्रॉफिट शेयर दे. यानी प्रोफेशनलाइज भी नहीं है, बच्चा भी धंधा नहीं है. तो MSME वाला क्या करता है मालूम है? सर धंधा बेचना है, किसी को दे दो. या तो धंधा किल कर देता है, जगह रेंट पे चढ़ा देता है, दुकान रेंट पे चढ़ा देता है. और ये ट्रेंड धीरे धीरे हो रहा है. व्हाट हैज़ ऑल्सो हैपेंड विद फार्मर्स. सम फार्मर्स, इतनी लैंड बैंक थी उनके पास, लैंड बेचते गए, फ्री पैसा आ गया तो गाड़ी, ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शायद कुछ गंदी आदतें में चली गई. बट दे डोंट रियलाइज दैट दिस इज ओनली टाइम बीइंग. ये वन टाइम है, इनफाइनाइट कैश फ्लो नहीं है. बट लैंड अगर आपके पास रहता तो आप बहुत कुछ कर सकते थे. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से सक्सेशन प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट. दो चॉइस है आपके पास. आपका बच्चा धंधे में नहीं आना चाहता, ठीक है, मत आओ. उसको आर्टिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, US में सेलेक्ट होने दो. बट धंधे को सिस्टम्स डाल के प्रोफेशनलाइज तो कर दो कि भाई एक CEO है, 2 डायरेक्टर है, वो रन कर रहे हैं, अच्छा सैलरी लेने के बाद हर महीने आपको 5 लाख 10 लाख दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? तो इतना उतना तो कर दो, सो दैट आपका धंधा, आपका खून पसीना एक पैसिव इनकम मशीन भी बन सके. So what would be your one core message to the MSMEs, and especially the grown up ones, 55-60 retirement age वाले? समय के साथ बदलो, नहीं तो समय बदल देगा. चेंज इज द हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ. एंड वन मोर मैसेज इज, इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओनली फॉर दोज हु आर रेडी. अगर आप रेडी नहीं हो तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, सेल्स नहीं बढ़ेगा, आप डिसरप्ट हो जाओगे. ये मैं देख रहा हूँ एवरी सिंगल डे. आई एम हियरिंग, सर EMI भर नहीं सकते, सर बिजनेस में स्ट्रेस बहुत आ रहा है, पापा को हार्ट अटैक आ गया. क्यों? दे आर नॉट रेडी टू चेंज, दे आर नॉट रेडी टू अडेप्ट. तो ये तकलीफ है. इंटरेस्टिंग. सो अगर इस पॉइंट को मान के चले तो व्हाट वुड बी दैट वन थिंग दैट यू वुड वांट टू चेंज? अगर आज से इफ यू कैन गो बैक इन टाइम 25 years, what would be that one thing that you would like to change for MSMEs? I would say 2 things. One is mindset. okay. कि MBA मत अपने आप को समझो. MBA के मतलब मने बदू आवड़े. मुझे सब आता है. कीप लर्निंग. क्या होता है, हम बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं ना, यहाँ पे जंक लग जाता है. टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया. तो माइंडसेट और लर्निंग एटीट्यूड रखो. एंड सेकेंड, डू नॉट अंडर एस्टिमेट सिस्टम्स. सिस्टम्स में इन्वेस्ट करो. सिस्टम्स आपको 100x रिटर्न देगा और देगा ही. सिस्टम्स का मतलब प्रोसेसेस, सॉफ्टवेयर, डेटा, वो सब में. डेटा ड्रिवन. यस. सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि डिसीजंस लेते हैं, क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन आवर गट इंस्टिंक्ट. या बट डेटा ड्रिवन डिसीजंस नहीं होते हैं. ओके. तो अगर इफ यू वांट टू एंड दिस एंड से फॉर MSMEs और स्टार्टअप्स, राइट, व्हाट वुड बी दैट only one piece of advice that you would want to give them? If I'm starting up new, or if I'm stuck somewhere in my business journey, what would be that one core piece of advice that you would want to give them? Very interesting. I think one piece of advice for entrepreneurs, I would say is strategy, systems, and sales. I know again it's 3 ideas, but strategy, system, sales, if you master them, success is yours for sure. Okay, but not marketing? I would say marketing is part of your strategy. So strategy का मतलब क्या है, किसके लिए आप करोगे, कैसे करोगे, तो किसके positioning लिए क्या है आपका, and all of that. Okay, so that will be part of strategy, build systems, and then sales. sales. So let me rephrase this. Yeah. Work on your strategy,
so that you are unique, work on your systems so that your business can run without you, and work on a good sales team so that cash, profit, and collection happens on time. You work in this order, you are always sorted. Super, super. So, sir, before we end, if you want to give any last message, if the viewers want to reach out to you for mentoring, right? Sure. You say that you are a mentor and not a coach, Yes. right? So, if someone wants to reach out to you for mentoring, how can someone reach out to you? सो मेंटोरिंग का मतलब, अगर आप डंडा खाने रेडी हो, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं हाथ पकड़ के, मेरी टीम हाथ पकड़ के आपके साथ चलती है. इफ़ यू वांट टू रीच आउट, वी आर देयर ऑन सोशल मीडिया @Basesh Gala, and you can also reach out to my team. Details will be there in below. Reach out to us, and I would invite all of you all. 3 hours, mostly every Sunday, 3 hours we have a live interactive workshop. हर एंटरप्रेनर, हर स्टार्टअप, हर यूथ को, हर लीडर को वो अटेंड करना चाहिए. It will open a lot of brains and ideas with you, and you will learn some new things. So I would request all of you all, invest 3 hours learning with us, and it will improve your business. Thank you so much, Basesh sir, once again for giving us that time, sharing your insights without any gyan, pure insights which the viewers can surely, if they want to implement, they can implement and grow their businesses. Sure. It's a pleasure. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you for having me. Thank you to all our viewers. I hope you enjoyed today's session. Do let us know in the comments what specific you liked about our episode today. And please like, share, and with your entrepreneur friends. Thank you.